So I have started the recording as well. Okay, Janab. So okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim, and a very warm good afternoon to everyone, and Assalamu alaikum. So hope all of you are fantastic and having all of you have taken your lunch time, and because after taking lunch, all of you are now ready for this exciting. I would say this is an exciting learning roller coaster journey with me, Imran Azam, your webinar host and Gold Framework partner, and Mohammad Khurram. And welcome on board Fazil Islam Saab as well. He is leading the supply chain and IT department at Security Papers Limited. So I especially, first of all, I would like to pay my special thanks to our CEO, Dr. Muhammad Ashraf Bhatt Saab, who has allowed us and given us permission for arranging this program. This program is not only for the benefit of the Security Papers Limited participants, but also for the participants from the corporate world. And we are expecting participants from Muller and Phelps. We have already received participation from BIA. Madam Bazara Rashid is here as the ex-director HR. And then we are expecting participations from ESPC, NSPC, Muller and Phelps, and the other organizations, the leading organizations from the corporate world. So welcome to all. Before starting the proceedings, I would just like to give you a brief overview that the topic is optimizing productivity, integrating the growth mindset and the lean framework approach. And I would like to pay special thanks to Khurram Saab, Mr. Mohammad Khurram, who is your lean management partner and have collaborated with me as your gold framework partner by arranging this program and by preparing the presentation and preparing the stuff and the resources so that both of us can walk you through how these two approaches, growth mindset, can integrate with the lean framework and how we can optimize productivity for our organization. So we will look forward to have a very, very exciting time with you. And both of us would also give a brief overview of our profile as well. And I believe most of you have already viewed those our profile as well as the learning outcomes in the flyer as well. So बात कर लीजिए वो जो लेके आना है आप बात करें संभाल लेके बात करें ओके जी so let's talk about the approach now. Let's talk about the approach now. You see, last time we have discussed in the MAP webinar, I have discussed about the gold framework. So what the gold framework is all about? This framework has been especially created for our technical experts who are very good in their role as individual contributors. होता क्या है practical corporate life पे हम देखते हैं कि जब organization के अंदर जो technical experts हैं from finance, accounts, IT specialists, your techie guys from infrastructure, your HR people, ये सारे के सारे they are very good in their individual roles in their individual domains, right? लेकिन जब बात आती है लीडरशिप की, क्योंकि होता ये कि आप उस रोल में जब आप IT स्पेशलिस्ट होते हैं, जब इंजीनियर्स होते हैं, आप टेक्निकल साइड पे काम कर रहे होते हैं, यू आर फैंटास्टिक इन योर व्हाट टेक्निकल स्किल्स. आपकी टेक्निकल स्किल्स बड़ी सॉलिड होती हैं, आपको सारा इक्वेशंस का पता होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपके पास सारे यू हैव ऑल द कमांड ऑफ द टूल्स एंड द टेक्निक्स एंड द डिफरेंट फॉर्मेशन प्रोसेसेस. लेकिन जब बात आती है लोगों को लीड करने की, और उसमें जब आपको बात आती है कि जब टीम को साथ लेके चलने की, राइट, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती. You are master in your field because you have a very, very high IQ, but when the time comes to demonstrate emotional intelligence and how to lead people and how to get along well with people, how to get the very best out of your team, and how to align those resources with the organizational objectives, with the business objectives, ultimately creating the bottom line for the organization. वहां पे बड़ा चैलेंज आता है टेक्निकल एक्सपर्ट्स को. और ये जो प्रोग्राम है गोल्ड फ्रेमवर्क का, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग दोज टेक्निकल एक्सपर्ट्स इनटू आउटस्टैंडिंग लीडर्स
इन जस्ट 90 डेज, उसके लिए हमने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया है। तो आज का जो सेशन है वो आज हम गोल फ्रेमवर्क पे पूरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक लास्ट टाइम हमने मैप के वेबिनार में, दैट वाज ऑन 23rd of September वी हैव डिस्कस्ड, और अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम एक उसका कंपोनेंट यानी ग्रोथ माइंडसेट को we will learn how to integrate that concept into the lean framework principles. तो उसको आज हमने समझना है कि why it is so important and how to really collaborate these two learnings to make more innovations and to give more benefit to the organization. मैं चाहूंगा ड्रॉप बॉक्स चैट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करें अपने मैसेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ग्रेट। तो सबका है कि खालिद साहब यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू नो एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, so this is very important. Haseeb साहब, just you know you need to mute yourself please, ठीक है? Very humble request to all of you, just mute yourself because you will be getting the time for answering the questions once both of us finish our presentation. So and we will give you at least 15 minutes time. So we really appreciate your patience, really appreciate it. तो हम जो बात कर रहे थे ग्रोथ माइंडसेट को हमने लिंक कैसे किया, हमने बात करनी है आज लीन फ्रेमवर्क के साथ कि कितना इंपॉर्टेंट है दोनों फ्रेमवर्क और अप्रोचेस को समझना और उसको फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में अप्लाई करना। और हमने सबने सुना है कि लीन मैनेजमेंट से होता क्या है, आपके वैल्यू क्रिएशन होती है, आपका वेस्ट एलिमिनेट होता है, राइट? आप कोशिश करते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज में, देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, हम सबसे कहा जाता है डू मोर, हम सबसे एक्सपेक्टेशन होती है मैनेजमेंट की कि वी हैव टू do what? We have to utilize minimum of the resources for generating maximum of the output. We have to take care of our waste. We have to take care of processes that must eliminate waste. और waste जो है वो 7 types के होते हैं। हमने ये चीज लर्न की है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि ओवर प्रोडक्शन भी अगर हमने कर दी तो वो भी एक वेस्ट है। अगर हमने इन्वेंट्री ज्यादा उसको कैरी किया तो दैट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ वेस्ट, राइट? अगर वेटिंग टाइम किसी चीज में बहुत ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को कंक्लूड होने में, या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब कोई विजिटर कॉल करता है और उसको वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन, तो अगेन इट्स अ लॉस, राइट? इट्स अ वेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन में या में ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये these are all qualify under waste। तो इसको पूरा डिटेल में इंशाल्लाह हमें पूनम साहब एक्सप्लेन करेंगे। तो we have to build our knowledge and continuously improve ourselves। हमें systems thinking को कैसे अप्लाई करना है, हमें communicate कैसे करना है, and how we can collaborate effectively, how to simplify the processes and procedures, and at the end of the day we need to serve our people, we need to ensure that the best quality service is given to all of our stakeholders। और याद रहे stakeholders में it not only talks about the internal employees but also your external employees। तो अक्सर ये होता है, मैंने देखा है in my corporate world में जो मेरा exposure रहा है as a consultant भी, और जब हमने काम किया different organizations में, तो हम externally तो stakeholders को बड़ा समझते हैं कि हाँ जी हमने अपने visitors को, अपने customers को, अपने vendors को के साथ अच्छा collaboration करना है, उनके साथ अच्छा treatment करना है। But what about your internal employees, right? You have to serve them very well. You have to ensure that their grievances are being addressed। हमने उनकी बात को सुनना है, we have to listen to them। और यहाँ पे फिर HR का भी रोल आता है, और हमारे लाइन मैनेजर्स का भी, they have to demonstrate empathy with them, they have to demonstrate emotional intelligence, they have to show respect to each and everyone। तो please drop into the chat box। यहाँ तक बात क्लैरिटी के साथ हो रही है? I hope I'm not going that fast। और हमने कोशिश ये है कि सबको साथ लेके चलना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, रिमेंबर इट्स अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस, बिकॉज जब हम वेबिनार करते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल सेशन, तो उसमें कोशिश ये होती है कि बात की जाए, समटाइम्स वन वे भी लग रहा होता है आपको क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप बाद में करेंगे, लेकिन प्लीज ड्रॉप इनटू द चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लैरिटी है? कोई अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू जस्ट नोट इट डाउन एंड वी विल आंसर इट एट द एंड ऑफ द वेबिनार। ठीक है जी? तो आई होप के हम यहाँ तक क्लियर है। प्लीज ड्रॉप इनटू द चैट बॉक्स, प्लीज फील फ्री अगर आपकी कोई क्वेरीज है। चलिए जी ग्रेट। अभी तक पूरम साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी है और सब चीजें समझ में आ रही, तो फैंटास्टिक। ओके जी, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूं क्योंकि अब चूंकि हमारे अपने ही लोग हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें I believe each and every one of you know me, but for those of you who might have joined us for the very first time,
This is Imran Azam, your leadership growth strategist, and I'm the founder of the Productivity Accelerator System, and that guarantees a transformation of technical experts into outstanding leaders in just 90 days. So, system हम लेके आए हैं, and I'm creator of the Goal Framework, which is an acronym of थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, growing the growth mindset, how to orient the leadership behaviors and the new behaviors into your technical leaders, how to align those strategies, their personal goals with the overall strategy, and the bottom line is leveraging results for the organization. The Goal Framework एक proprietary signature solution है जो मैंने introduce किया है, and I am a sort of a facilitator and coach with the solid professional accreditations of HR. I am the chartered professional human resources and the senior certified professional from Society of Human Resource Management USA. इसके अलावा I am also an IB grad of 1996. तो पूरम सब अपना भी आपको introduction कराएंगे once my presentation is over. तो next slide में हम देखते हैं कि it's very very important कि आज हम यहाँ पे why we are here, right? So thank you so much to all of you for spending time out of your precious schedule. That's really awesome. और फिर हमने I'm thankful to Puram as well. बड़ी कोशिश यही की कि हम इसको स्पीड से जो है मतलब टाइम पे स्टार्ट करें, और हमने कोशिश की कि we start on time. Thank you so much. So आज का key learning objectives ये है कि we will try to understand what is the mindset and to appreciate the difference and to really learn the difference between the fixed and the growth mindset. And we will also learn how growth mindset can be embedded in a variety of talent processes and systems. So इसको भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. HR के जो लोग हैं वो जरूर इस पे मुझे हेल्प भी करेंगे और इनसाइट्स को जरूर अप्रिशिएट भी करेंगे. And the third concept is the how organizations use an array of habit building activities. So habit building activities कैसे वो जनरेट करनी है ताकि we have to ensure that the growth mindset behaviors stick into the organization. Remember guys, it's very easy to introduce a new concept, a new thing. नई learnings को लेके आना बड़ा आसान है, but at the end of the day जो हमें जो रिफ्लेक्शन आएगी वो कहाँ से आएगी? जब आपके रिजल्ट्स हैव टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, और वो जब ही होगा जब वो बिहेवियर्स जो आपने न्यू बिहेवियर्स को इंट्रोड्यूस कराया, that should stick to them and that should become part of their routine and system. And the fourth point is जो कि पूरा उस पे बात करेंगे, how to identify the value addition activities through lean framework. चूंकि पूरम का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, सिक्स सिग्मा चैंपियन भी है, लीन के एक्सपर्ट है, तो वो आज हमें सिखाएंगे कि वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज वो कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, एंड हाउ टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस वर्कफ्लो एट होल सिस्टम. सो आई बिलीव कि इट्स अ वेरी वेरी अदरवाइज लग तो ऐसा रहा है कि काफी हैवी एजेंडा है, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम कोशिश करेंगे आपके साथ जो बेस्ट रिसर्च और बेस्ट इनसाइट्स आपके साथ शेयर कर सकें. तो अब्दुल हसीब साहब ने ज्वाइन किया. अब्दुल हसीब जी, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. ओके, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले माइंडसेट की. तो एनीवन, आप मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें. तो एनीवन ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट इज रियली द माइंडसेट ऑल अबाउट? व्हाट इज माइंडसेट? थोड़ा सा अगर आप में से कोई इसको एक वन वर्ड अगर डिफाइन कर सके, और जो भी आपके देखे, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, एंड आई वुड लाइक यू टू रियली ड्रॉप इनटू द चैट बॉक्स के माइंडसेट से आप क्या समझते हैं, प्लीज. मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज म्यूट देमसेल्व्स. चार्ज भी तो होगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. इब्राहिम ने बड़ी जबरदस्त बात की, द वे यू अप्रोच योर प्रॉब्लम्स. मैम गजाला ने ग्रेट स्टार्ट किया, तो थैंक यू सो मच मैम गजाला. माइंडसेट कैन बी नेचर ऑफ एनीवन बिहेवियर. जी, एनीवन एल्स अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, जबरदस्त पार्टिसिपेशन खुरम साहब ने जबरदस्त बात की. तो आई बिलीव कि आप बड़े क्लैरिटी है हमारे लोगों के माइंड्स में और काफी यू आर क्लोज. सो माइंडसेट इज व्हाट? माइंडसेट इज ऑल अबाउट योर बिलीव्स. गाइस, आप जो हमने जो बात अभी करनी है, और दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हमें बड़ा अच्छी तरीके से मैं चाहूंगा अप्रिशिएट करें और अंडरस्टैंड करें, और फिर हमें वी नीड टू इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट्स. कि माइंडसेट आपका क्या बताता है? माइंडसेट आपको, माइंडसेट टेल्स यू कि व्हाट आर योर बिलीव्स, व्हाट आर योर अंडरलाइंग बिलीव्स. आपका जो जिस चीज को आप यकीन करें करते रहते हैं, वो आपका बिलीव का आपके पार्ट ऑफ योर सिस्टम बन जाता है, आपके ब्रेन का. और इसीलिए कहते हैं कि यू कैन गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड एंड यू कैन also give negative instructions to your mind. You can do anything. Or sometimes it is being said
that when we say that this is possible, or there are other persons who say that this is not possible, right? This is impossible. और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, right? When you say I can and when you say I can't, अगर दो आदमी हैं और एक ही चीज के बारे में एक ही एक्शन के हवाले से दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो both of them are absolutely right. और मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमने देखा कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट का आर्काइविंग का हमने सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और उसमें हमें डेफिनेटली जैसे हर जो भी कोई चीज नहीं की जाती तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आया, कुछ रेजिस्टेंस भी आई, लेकिन दोनों जो ग्रुप्स थे वो अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि एक ग्रुप ये समझता था कि यस वी हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी, और हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं ना अर्ज हम कर सकते हैं, और जो दूसरा ग्रुप जो था उसकी अगर फाइंडिंग्स थी, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो भी सही है, और उसका आज हम आपके साथ थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। देखिए होता ये और एग्जाम्पल इसके लिए अक्सर हाथी की दी जाती है, एलिफेंट की एग्जाम्पल दी जाती है। क्या आपने मोस्ट ऑफ यू हैव रियली एक्सपीरियंस्ड कि जब एलिफेंट होता है और आपने बचपन में देखा कि वो जब छोटा होता है, राइट, जब किड एलिफेंट होता है और उसको जब हम चेन्स के साथ स्टक कर देते हैं तो उस वक्त उसको बताया ही जाता है कि वो छोटा होता है बहुत, उसके अंदर इतनी जो है वो अहलियत नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो उस चेन के अंदर ये समझता है कि ठीक है ये चेन जो जिसमें मुझे लॉक कर दिया गया है, ये चेन जो है वो मैं इसको तोड़ नहीं सकता, आई कांट ब्रेक दैट चेन। और फिर होता है कि जब वो बड़ा भी हो जाता है, राइट, और इतना माशाल्लाह इतना जैसे कहते हैं ना कवि हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पूरे फॉरेस्ट को वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो चेन को फिर भी ब्रेक नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसके माइंडसेट में एक चीज बैठ गई है कि चूंकि याद है वो बचपन का है कि जिसमें मैंने अपने चाइल्डहुड में उसको वो नहीं कर सका था मैं, और तो वो उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका था, उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, हालांकि वो गलत होता है, राइट, लेकिन उसको उसने कभी चैलेंज नहीं किया होता। तो जो हमारी एजम्पशंस होती हैं, जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सही या गलत, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, वही फिर हमारे जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, हमारे एक्शंस पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे एटीट्यूड पे। और आपने इसीलिए देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब कोई परेशानी आती है, कोई चैलेंज आती है, तो दो तरह के मोड्स होते हैं, एक फाइट मोड होता है और दूसरा फ्लाइट मोड होता है। तो हम में से जो लोग जिनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए होते, जिनके बिलीव्स उसी तरीके से बन गए होते हैं, जो बिहेवियर जो है वो हमेशा ऐसे बिहेवियर्स दिखाते हैं जिसमें कोशिश होती है कि वो उस काम से किसी तरीके से बच जाएं और फ्लाइट का मोड इख्तियार करें, तो आपने देखा होगा फिर ऐसे लोग लाइफ के अंदर कोई अचीवमेंट जो है उनके लिए मुश्किल हो जाती है, और वो हर छोटी चीज को, हर छोटे चैलेंज में क्या हो जाते हैं, एक फिक्स, आगे वाली स्लाइड में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा फिक्स माइंड सेट हो जाता है कि वो किसी भी चीज को चैलेंज करने से घबराते, वो स्टेटस को जो है चैलेंज नहीं करते, वो एजम्पशंस को चैलेंज नहीं करते, वो अपने आप से अपनी क्वेश्चन एजम्पशंस को क्वेश्चन नहीं करते, अपने एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, और वो अपनी जगह सही होते हैं क्योंकि उनके बिलीव्स इस तरीके से बन चुके होते हैं। और यही चीज आज हमने सीखनी है कि कैसे उन बिलीव्स को, ये सारे मिथ्स हैं, ये सारे मिसपरसेप्शंस हैं, और कैसे इस मिसपरसेप्शंस को दूर किया जा सकता है विद अ ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच। तो हम आपके साथ जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें प्रॉपर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज ड्रॉप इनटू योर चैट बॉक्स, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, आई बिलीव आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, टाइम ऐसा है, हमारी कोशिश ये कि हम सबको साथ लेके चलें, एंड आई एम रियली ग्लैड कि वी हैव अराउंड 20 पार्टिसिपेंट्स। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कि आज हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड माइंडसेट एंड द ग्रोथ माइंडसेट। एंड एज आई सेड बिफोर इन द लास्ट स्लाइड, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी है वो एक उसकी जो कंसेप्शन है, परसेप्शन बचपन से ये बन गया है कि मेरी इंटेलिजेंस, अल्लाह ताला ने जो मुझे एबिलिटीज दी हैं दैट कैन नॉट बी चेंज, राइट, जो इनबॉर्न में लेके आया हूँ दैट दोज एबिलिटीज कैन नॉट बी चेंज। मेरे माइंडसेट में जो मुझे अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया, जो कैपेसिटी दी है, वो एक फिक्स्ड है। और इसको माय डियर फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ डॉक्टर कैरल ड्वेक। डॉक्टर कैरल ड्वेक बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है, बहुत कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने न्यूरो जो है बच्चों के ऊपर जो है वो एज ए साइंटिस्ट जो उन्होंने काम किया, जो उनकी प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च है माइंडसेट के बारे से, उनकी बेस्ट सेलिंग बुक भी है माइंडसेट पे। मैं चाहूंगा कि जब रिव्यू करें लाइट्स, should I continue? I hope के your default continue। Okay, so I hope कि I'm audible. So होता क्या है, what happens, फिक्स माइंड से जब आपका इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तो आपका माइंडसेट में ऐसे लोग क्या होते हैं,
they always lead with fear. They have a desire to prove themselves. वो हमेशा हमेशा अपनी मैनेजमेंट की नजरों में, अपने घर वालों की नजर में, अपनी फैमिली में हमेशा दे वांट टू रिमेन गुड, एंड यू नो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव, और वो पॉइंट क्या होता है कि उसके पीछे कोई उसकी बेसिस नहीं होती, वो चैलेंजेस को अवॉइड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं एफर्ट्स करने की जरूरत ही क्या है, यू नो एक चीज, जो चीज चल रही है, एक आईबीएम का कल्चर है, हमें एक ट्रेनिंग में मैं सीखा, मैंने ये लर्न किया कि इंशाल्लाह बुकरा एंड मालिश। व्हाट डू यू मीन? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा। बुकरा मीन्स टुमारो, यानी काम ये कल हो जाएगा, और मालिश मीन्स जिस तरह चलता है चलने दो, वॉट एवर जिस तरह काम हो रहा है बस इसी तरह काम को करते रहें। कोई काम में मजीद चेंजेस की, कोई इंप्रूवमेंट लाने की, कोई इनोवेशन की, कोई क्रिएटिविटी की, कोई एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है। और इस तरह की जो माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट, आपने देखा होगा पिक्चर भी बड़ी मजे की बनी हुई है, जो ताला बना हुआ है वो वाकई दिमाग में एक ताला लग गया है, राइट। ताला क्या है कि आपके अंदर 65% एबिलिटी जो आपके रब ने दे दी है, नेचर ने दी है, और 35% एफर्ट भी बड़ी मुश्किल से आप करने को तैयार हैं। और जब इस तरह का माइंडसेट आपका हो जाता है तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, अपनी मौत आप मर जाती है। वो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर ही नहीं लेके आ पाते जो कि जिसमें थ्राइव कर सके आपके सिस्टम्स और आपके लोगों की जो है डेवलपमेंट हो सके, और लीन मैनेजमेंट और काइजन और इस तरह की जो अप्रोचेस हैं, जो मॉडर्न जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्बेड हो सकें या इवन इंट्रोड्यूस हो सके। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट इज यू नो टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यहाँ पे आप वल्नरेबल भी होते हैं, आपके अंदर डिजायर भी होती है फॉर डेवलपिंग योरसेल्फ, यू लाइक टू इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे, और आप इस चीज के बिलीवर होते हैं कि आपका हर आने वाला दिन गुज़श्ता दिन से बेहतर होना चाहिए। हम कुरान के अंदर देखते हैं कि बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जो है वो कायनात को तस्खीर करे, राइट, एक्सप्लोर करे। तो आप इंप्रेस कर रहे होते हैं चैलेंजेस को, आप एफर्ट को, यू सी एफर्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप ये समझते हैं कि देखिए फेलियर, जब आप वेन एवर यू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, नए नए क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स को आप लीड करते हैं या उसका पार्ट बनते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेस हासिल नहीं करते। यू डू नॉट सक्सीड ऑल द टाइम, यू डू नॉट गेन सक्सेस ऑल द टाइम, यू डू नॉट यू नो गेन द फेवरेबल आउटकम ऑल द टाइम। ऐसा होता है, लेकिन जब आपको कोई नाकामी होती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, तो उसको भी आप पॉजिटिवली लेते हैं, आप खंदा परेशानी से उसे कबूल करते हैं, यू टेक इट एज लर्निंग। एंड इसी वजह से यहाँ पे जो फेल के ऐसे लोगों के दिल के अंदर जो फेल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड यू से कि जो फियर होता है तो आप कहते हैं फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। आप फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर नहीं होता, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए बिल्कुल नहीं घबराते, और आप एम्ब्रेस करते हैं फीडबैक को। हर फीडबैक इज व्हाट, फीडबैक इज अ गिफ्ट, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव का वर्ड यूज नहीं होता, आप उसको डेवलपमेंटल फीडबैक कहते हैं। आप उसको जो आपको वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन कह रही होती हैं, आप वहां पे वीकनेसेस का वर्ड यूज नहीं करते, दुनिया में ऑब्सोलीट हो गया है। ग्रोथ माइंडसेट इसको एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट कहते हैं, और इनको फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो बड़ा ग्रीन ग्राफ, बड़ा इट सेज इट ऑल। 65% आपकी एफर्ट है और 35% आपकी एबिलिटी है। मींस कि आप जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अगर आप अपनी माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देंगे। याद रहे, व्हेन यू से इम्पॉसिबल, आपके पास इम्पॉसिबल का वर्ड क्या होता है, आप उसको क्या पढ़ते हैं, आई एम पॉसिबल, यानी इट्स पॉसिबल। तो आपके लिए इम्पॉसिबल का वर्ड आपके डिक्शनरी में नहीं होता। और प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट, याद रहे, आपके पास कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो 100% ग्रोथ माइंडसेट का हो या 100% फिक्स माइंडसेट का हो सकता है 100% फिक्स माइंडसेट का आदमी मिल जाए, लेकिन आपको करना क्या होता है कि अक्सर ये होता है, हमने जो अपनी रिसर्च में देखा है, हमने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस में देखा है कि आपके पास जो लोग हैं वो दोनों ही अप्रोचेस होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट भी का भी पोर्शन होता है, फिक्स माइंडसेट का। तो आपने करना क्या है, व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि ग्रोथ माइंडसेट का जो कंपोनेंट है उसको बढ़ाते चले जाना है और फिक्स माइंडसेट को कम से कम करते जाना है, और उन ट्रिगर्स को समझना है जिसकी वजह से जो जहां पे आपके ऊपर फिक्स माइंडसेट की सिचुएशंस आएंगी और उनसे पॉजिटिवली निकलना है। तो चूंकि सेमिनार वेबिनार का टाइम हमारा लिमिटेड है, हमें और भी चीजें आज करनी है, तो हम यहीं तक इस डिस्कशन को महदूद रखेंगे। और जिसको फिर पूरा इस फ्रेमवर्क को आप समझना चाहते हो, तो गोल फ्रेमवर्क का एक वर्कशॉप मैप के कोलैबोरेशन से हो रहा है 24 नवंबर को, वेडनेसडे को, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम अपनी स्लाइड्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, फिर जब ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या होता है।
ऑर्गेनाइजेशंस को पर्सनलाइज करना पड़ता है मीनिंग ऑफ ग्रोथ माइंडसेट को। देखें, याद रहे कि ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से आपके लिए बड़ा जरूरी है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू हैव टू इनकलकेट अ न्यू हैबिट, अ न्यू सिस्टम, अ न्यू प्रोसेस, तो उसमें लोगों का बाय इन बड़ा जरूरी है। तो इसलिए यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज, उनका इनपुट लेना बड़ा जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो काम हो रहा है, वो क्या है कि नो इट ऑल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि जी मुझे सब कुछ आता है। जब आपने ये कह दिया व्हेन आई नो एवरीथिंग एंड आई नो इट ऑल, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कि फिर आपने फिक्स कर लिया अपने माइंडसेट को। आपने क्या बात करनी है, इट्स अ लर्न इट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। आपने सीखने के लिए हर वक्त तैयार होना है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअस लर्निंग साइकिल में जारी होती हैं। और मैं एग्जांपल अपनी दूंगा, जो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन कनाडा, तो एक मेरा क्लाइंट था बेस्ट बाय। तो हम वहां पे देखते थे कि बेस्ट बाय की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम क्या होता है, जो दुनिया भर की जो टेकीज और जो गैजेट्स हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो हमने वहां पे देखा कि जो उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो अपने एसोसिएट्स को लेके स्टोर में फ्लोर में ड्रिल कराते थे। और हडल क्या होती थी रोजाना सुबह जो शिफ्ट के स्टार्ट में, कि हर आदमी अपने लास्ट जो डे की सेल है उसको रिव्यू करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्डवेयर का कोई डिपार्टमेंट है या सॉफ्टवेयर का कोई, या जो है टेक्निकल जो भी आइटम्स है गैजेट्स के, वो अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन की मार्केट है और किसी के पास एक कैमरे की मार्केट है, तो आप अपने लास्ट डे की जो सेल्स हैं उसको आप रिव्यू करते थे और आज के जो टारगेट है उसको डिस्कस करते थे। और इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे जिसपे आप बात करते थे। तो उससे क्या होता है, जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो यू टेक द इनपुट ऑफ योर टीम मेंबर्स। और याद है, जब तक आप इनपुट नहीं लेंगे टीम मेंबर्स का, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, और उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस शेयरिंग नहीं करेंगे उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की, तो कभी भी आपके पास सही वेरिएबल्स नहीं आएंगे और आपके पास सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट आप नहीं ला सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ती है, जो कि ये जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन लैंग्वेज होती है ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से। तो वो वोकैबुलरी जो है वो उसको इनिशिएट करना और डिस्कशन को इनिशिएट करना बड़ा जरूरी है। ये सोर्स हमने जो आपके साथ ये जो ये स्लाइड शेयर की है, ये इंडस्ट्री रिसर्च हमने की है न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट ने 2018 में, जो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे थे। अच्छा जी, हम ये भी देखा है हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगेन ये भी एक रिसर्च है जो आपके साथ शेयर की जा रही है, कि बिजनेस दे आर बिजनेस ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, बिजनेस इंप्रूवमेंट है, री इन्वेंशन है, नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के हवाले से बात है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, क्वालिटी इनहैंसमेंट है। ये सारे ग्रोथ माइंड जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी हैव सीन, दीज आर द बिजनेस ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्शन। और जब ऑर्गेनाइजेशंस जब इनको अडॉप्ट करती हैं तो आपने देखा डिफरेंट परसेंटेजेस हमें नजर आ रहे हैं कि आपके पास जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे कितना क्या परसेंटेज है आपका। फिर आप किस तरीके से बिजनेस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि 38% आपका अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर ऐसा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश हो रही है जहां पे अब वक्त ऐसा आ गया, स्पेशली पोस्ट कोविड, कि हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम के हवाले से कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि अब जो है वो ड्राइवलेस कार्स के हवाले से बात हो रही है। तो जब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और जो है वो अब जो ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं कि कैसे डिफरेंट टाइम जोन में हम कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो हम ये देखते थे कि पहले एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना आपका जरूरी होता था किसी भी जब हम काम करते थे। अब ट्रेनिंग कितनी आसान हो गई है कि ट्रेनिंग्स को भी हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल हम अपनी ट्रेनिंग की ले लेते हैं या मीटिंग्स की ले लें कि हम अपनी एसपीएल की एग्जाम्पल देंगे कि कोविड के बाद हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हमारे डायरेक्टर्स, अगर कोई दुबई से आ रहा है, कोई टर्की से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, तो इतना आसान कर दिया। और थैंक्स टू सलमान और इनकी टीम ने, हमारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम ने जब जूम किया और सारी ये चीजें जब हमने इनकॉर्पोरेट की और फिर उनको सिस्टम्स को उनको भी लर्न करा दिया, सारे जो एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स थे 60+ जहाँ पे मुश्किल होता है राइट टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना, तो लाइफ बड़ी सिंपल हो गई। तो ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ माइंडसेट जो है ऑर्गेनाइजेशन अब अडॉप्ट करती चली जा रही है। एक और कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है यहाँ पे समझना कि जब भी ग्रोथ माइंडसेट का कल्चर आप लाएंगे तो यू हैव टू मेक एन अलाइनमेंट बिटवीन प्रायोरिटीज, हैबिट्स एंड सिस्टम्स। और प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो सेलेक्ट करेगी। आपने जब डिस्कशन कर लिया और जो है प्रायोरिटीज सेलेक्ट करने के जी ये हमारे इंटरवेंशन है और ये हमारे स्ट्रेटजीज है, ये हमारे की टेक अवेज है जिनको इम्प्लीमेंट करना है, तो उन प्रायोरिटीज को फिर आपने डिस्कशन
करके आपको हैबिट बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी काम बने, राइट, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी सेट हो रही है, लोगों का बिहेवियर्स का पार्ट बन जाए। और बिहेवियर्स जब भी होंगे जब वो उनकी हैबिट्स में इनकलकेट हो जाएगा। तो जब बार बार आप करेंगे, फीडबैक कन्वर्सेशंस होगी, और ये टू वे कन्वर्सेशन, राइट, ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ आपका जो है वो HOD कन्वर्सेशन करे, बल्कि आपका जो है वो दोनों ने कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, जो और उस पे आपने एक्सप्लोर करना है ज्वाइंटली कि कैसे जो है वो हमने हैबिट्स को इनकलकेट करना है, और फिर सिस्टम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कराना है। और HR का रोल इसमें बहुत ज्यादा अहम है कि जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस होती हैं, हायरिंग होती है, ऑनबोर्डिंग, सारे हमारे प्रोसेसेस होते हैं, तो कैसे आप अपने सिस्टम्स के अंदर ग्रोथ माइंडसेट को इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमारा जो मैप का जो वेबिनार जो प्रोग्राम हो रहा है 24 को, उसमें हम ये सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस आपको बना के सिखाएंगे, और आपको उस पूरे कल्चर के साथ उस कल्चर को कैसे अपने इदारे के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और इनकलकेट करना है, उसके हवाले से हम आपको टूल्स देते हैं, उनको आपको प्रोसेसेस आपसे करवाते हैं। वो सारे काम हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो वहाँ पे लीडर्स हैं वो खुद करके देखें, उन सिस्टम्स को अप्लाई करके देखें। जी जब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात करनी जरूरी है कि कैसे ये सब जब सारी चीजें आपने कर ली, आपने लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जब आप प्रायोरिटीज को और बिहेवियर्स को जो है वो उस पर काम कर रहे हो, अल्टीमेटली हैबिट्स स्टिक हो रही है, और हैबिट्स जो है वो हैबिट्स से फिर आप सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि इनको सस्टेन करना, राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन दोज न्यू हैबिट्स। और इसमें मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एक कॉन्सेप्ट कहलाता है जिसको विन, आप अपने चाहें तो अपने पास लिख लें, इट्स कॉल्ड WLC, and it's an acronym of what, कोई चैट बॉक्स में ड्रॉप करेगा, what do you mean by what do I mean by WLC? WLC कोई मुझे अगर इसमें इसका एक्रोनिम कोई बताना चाहे, ठीक है। So WLC is what? Any one of you, मैं चाहूंगा कि लोग पार्टिसिपेट करें और थोड़ा सा एंजॉय करें इस कन्वर्सेशन को। सो अभी जवाब दिया, चलो हम आपके साथ बात कर लेते हैं। सो WLC इज व्हाट? विन, लर्न एंड चेंज। तो जब भी कोई कन्वर्सेशन हो तो आपने क्या चीज देखनी है? आपने ये देखना है कि जब आपकी एक्टिविटी हो गई, राइट, तो उसमें कुछ काम ऐसे हुए होंगे जो कि बहुत सक्सेसफुल हुए होंगे, और आपने देखा होगा कि यार ये काम जो हुआ ये बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, राइट, इट वाज जस्ट टू योर डिजायरेबल एक्सपेक्टेशंस। तो आप क्या बात करेंगे? आप कहेंगे कि आप सवाल क्या करेंगे? आप सवाल आपका ये होगा अपने टीम मेंबर से, अपने जो आपका जो कलीग है उससे आप सवाल क्या करेंगे कि व्हाट वेंट वेल, यानी क्या चीज ऐसी थी जो इस काम में आपने किया और वो आपके लिए विनिंग थी, आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। और इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज अच्छी नहीं हुई तो वो आपके लिए क्या है? वो रिफ्लेक्शन है आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप पूछेंगे व्हाट वाज ट्रिकी, यानी व्हाट डिड नॉट गो वेल। और जब ये दो सवाल आपने कर लिए, पहला सवाल आपका विन से था कि व्हाट वेंट वेल, यानी अगर उसने कोई चीज अच्छी की है जो कि सक्सेस आपको मिली है तो वो आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा। और जो चीज ठीक नहीं हुई है वो आपके लिए लर्निंग होगी, उससे आप रिफ्लेक्शन करेंगे। और तीसरा सवाल क्या करेंगे कि हाउ वुड यू लाइक टू डू इट डिफरेंटली। अगर कोई चीज ठीक नहीं हुई है तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या करेंगे, राइट। और इसीलिए मजहब में हम देखते हैं कि हम कुरान जब पढ़ते हैं तो एक बात बड़ी की जाती है कि इंसान जब दुनिया से जाएगा तो उसको एक चीज का जरूर तलब होगा, वो क्या होगा? सदका ना देने का। वो या ख्वाहिश होगी कि काश मुझे दोबारा भेज दिया जाए और मैं और सदका दे देता, क्योंकि उसका इतना ज्यादा बेनिफिट उसको नजर आएगा। तो इसलिए ये आई बिलीव ये जो चार्ट है ये बड़ा इट सेव्स इट ऑल। ओल्ड हैबिट से नए हैबिट का सफर जरा मुश्किल होता है। ओल्ड हैबिट्स आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है, न्यू हैबिट्स जो अच्छी हैबिट्स हैं आपने एक्वायर भी करनी है, और उसको स्टिक जब भी करेंगी जब वो आप उसको बार बार करते रहें और डेली बेसिस पे करते रहें। और ये जो सवाल मैंने आपको, ये जो टिप आपको दिया WLC याद रखिएगा, विन, लर्न एंड चेंज। जब आप इस तरह कन्वर्सेशन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इन चीजों को अप्लाई कर सकेंगे। ग्रोथ माइंडसेट जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि आप जो रिसर्च ही कहती है कि डिफरेंट प्रोसेसेस और सिस्टम्स में, टैलेंट प्रोसेस और सिस्टम्स में HR की जो है वो अप्लाई कर रहा है। और जाहिर सी बात है HR जब काम करता है तो वो लाइन मैनेजर्स की कोऑर्डिनेशन के साथ करता है। एक रिसर्च आपके साथ शेयर की कि लर्निंग के अंदर आप अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर 56% जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका लीडरशिप डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, अपने ऑन बोर्डिंग प्रोसेसेस में, टैलेंट रिव्यूज में। एक छोटी सी एग्जांपल हम देते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ मूव करेंगे कि व्हाट हैपेंस इज कि जब आप सवालात करें, जब आदमी को हायर करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? बहुत सारी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टार टेक्निक यूज होती है जिसमें आप कुछ सिचुएशन देते हैं, उनको टास्क देते हैं और बताते हैं कि भाई आप इस लेवल पे आप इस तरह जवाब दें कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट
कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, आपने क्या टास्क परफॉर्म किया, उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना पड़े और फिर रिजल्ट आपका क्या है। एक स्टार टेक्निक है, इस तरह डिफरेंट आपके पास बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस आप करते हैं और डायरेक्टली आप ग्रोथ माइंडसेट का नहीं पूछते, लेकिन उनके जो उन्होंने रेस्पॉन्सेज दी होती हैं अगेंस्ट गिवन सिचुएशन, उससे आपको पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट जो भी नया इनकम्बेंट आ रहा है उसने कितना ग्रोथ माइंडसेट के साथ आ रहा है और क्या ग्रोथ माइंडसेट उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कभी अप्लाई किया है या नहीं किया। तो आई होप के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की यहाँ पे हो रही होगी। और ये वाली जो नेक्स्ट स्लाइड है इसका हमने पहले ही बात की कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या चीज कल्चर लाना है कि वी वांट टू बी वी वांट नॉट टू बी अ नो इट ऑल बट रादर वी वांट टू डेवलप अ लर्न इट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है जहां पे वर्चुअस टीचिंग साइकिल हो, वर्चुअस लर्निंग साइकिल हो और हर आदमी दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर कर सके। और याद है कि जितना कोलैबोरेशन होगा, जितनी रिसर्च होगी, जितनी फियर आप खत्म करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन करने का और इनोवेशन को लाने का, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ माइंडसेट क्या होगा वो बहुत ज्यादा तरीके से अडॉप्ट हो रहा होगा और आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे मैंने बार बार अर्ज किया कि इसको पूरा आपको लर्न करने के लिए अगर आप इस सिस्टम को पूरा समझना चाहते हैं, यू वांट टू हैव मैस्टरी ओवर दिस कॉन्सेप्ट, आप मैप का एक पब्लिक वर्कशॉप हो रहा है 24 नवंबर को, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आप जो है वो अवेलेबल है मैप की वेबसाइट पे भी, और मेरी वेबसाइट है imranazam.com। आप जरूर से आई वुड अप्रिशिएट अगर आप इसको विजिट करें, और इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, जो जो हमने अभी तक प्रोग्राम्स किए, आपको रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल होंगे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप उससे डिस्कस करना चाहें 1-to-1, मेरा सेल नंबर भी अवेलेबल है और मेरा ईमेल भी आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। तो हैविंग सेड दिस, आई वुड नॉट टेक एनी फर्दर टाइम। मैं मैप का कर लेते हैं, नहीं हो रहा, नो वरीज। ओके जी, सो दिस इज द फ्लायर फॉर द मैप वर्कशॉप। आपने देखा कि इसमें प्रॉपर ओवरव्यू भी इन्होंने दिया हुआ है और टाइमिंग्स और वेन्यू भी दिया हुआ है। तो इस रॉयल रॉडेल क्लब में है ये, एंड सो इट्स ऑन 24 नवंबर। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, आप इसको रिव्यू कीजिए और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इसके साथ हमने लगाया हुआ है एंड द फीस इज वेरी नॉमिनल, और इसमें आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसमें डिस्काउंट्स भी हैं फॉर 5 और मोर पार्टिसिपेंट्स, यू विल रिसीव अ फैंटास्टिक डिस्काउंट एज वेल। तो आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अभी थोड़े दिन पहले हमने बड़ी इसकी प्राइम कैटेगरी होती है और बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी विन किया है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड। और एक बात मैं जरूर बताऊंगा, जो हमारे सीईओ साहब ने यहाँ पे कल्चर लाने की कोशिश की, जब उन्होंने विन किया तो उन्होंने कहा कि ये अवार्ड जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। ठीक है, सीईओ जरूर गए जाते हैं, सीईओ लेवल पे जाके वो अवार्ड को रिसीव किया जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे द सक्सेस बिलोंग्स टू द ऑल मैनेजमेंट टीम। और ये जो डेडिकेट उन्होंने किया इस पूरे अवार्ड को, पूरी हमारी वर्कफोर्स को। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ग्रोथ माइंडसेट के कल्चर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीइंफोर्स करने की कोशिश की। हैविंग सेड दैट, ओवर टू यू खुरम, थोड़ा सा मैंने टाइम थोड़ा सा मैंने लिया है, तो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। और खुरम साहब, ओवर टू यू, एंड आई बिलीव कि आपसे बड़ी अच्छी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो फ्रेंड्स आए, वी ऑल आर यू नो would like to learn the lean management concepts for you. So the floor is all yours, खुरम साहब। इमरान साहब, अगर आप 2 मिनट के लिए और कंटिन्यू कर ले, मेरी साइड पे अजान हो रही है, मैं इसके बाद करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट दे दें मुझे, बस आप कंटिन्यू कर लें प्लीज 2 मिनट के लिए। ओके जी, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ तक हमने डिस्कशन किया है, तो वुड यू लाइक टू यू नो यू मस्ट हैव एनी क्वेश्चंस, तो प्लीज अपने जो है चैट में, आई वुड लाइक यू टू ड्रॉप इनटू योर चैट बॉक्स। जी, तो फुरकान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल हसीब साहब हैं, आमिर मुगल हैं, तो प्लीज फील फ्री टू क्वेश्चन। मैम गजाल राशिद हैं PIA से, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि आप लोगों की जबरदस्त पार्टिसिपेशन रही है अभी तक। डिफिकल्ट होता है, हमेशा याद रखें वेबिनार में, क्योंकि इट्स वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन वी आर रियली ग्लैड कि हमारे पास 19-20 पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट्स वेरी गुड नंबर।
तो इसमें प्लीज आपकी अगर कोई क्यूरी हो, यहाँ तक कोई बात जो समझ में ना आई हो, तो प्लीज डू लेट अस नो। शुएब साहब ने कहा उनको WLC का कॉन्सेप्ट पसंद आया, ग्रेट। विन, लर्न और चेंज याद रखना है आपने। तो एनी वन ऑफ यू जो आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज फील फ्री। तो बस ड्रॉप इनटू द चैट बॉक्स कोई सवाल, कोई चीज ऐसी जो आपको क्लैरिटी जिसमें मजीद चाहिए हो, कोई मजीद डिस्कशन जहां पे रिक्वायर हो। इमरान साहब मुझे राइट्स दीजिएगा ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं प्लीज। राइट्स यू ऑलरेडी हैव गॉट द राइट्स, हमें बताया हमारी टीम ने। आप शेयर कराइए स्क्रीन, अगर कोई इशू होता है तो फिर हम आपको यहाँ से शेयर करा देते हैं, नो वरीज। ओके, ये आ रहा है मेरे पास, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, we have made you co-host once again, sorry for that। वो sometimes ये होता है कि सिस्टम आपको डिसेबल कर देता है। No worries, so you have reconnected, तो वो आपका जो कनेक्शन है वो लूज हो गया था, वो जो राइट्स थे। जी, over to you, floor is all yours, Poonam bhai। Okay, first of all thank you everyone, and I just need your 15 to 20 minute maximum। so मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करके देखें, हम क्योंकि हम बहुत सी शॉर्ट चीजें जो हैं वो बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के जो हमने एज अ इसका जो टॉपिक हमने देखा था कि लीन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो दैट आप सब लोग जो हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, व्हाट आर दे नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा को इमीडिएटली आप लोग जिन जिन को पता है कि व्हाट इज द right meaning of lean, you should write in the chat box, because after some time we have many examples and many things that we should discuss. So first of all we have to know what is the basics. So just please share what is the meaning of lean. What do you mean, what do you understand, what is the what is meant by lean? जी बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो है वो आना शुरू हो रहे हैं। लीन मीन थिन, मैम गजाला बिल्कुल यू आर राइट। नैरो, मिनिमल, आमिर मुगल यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। सो ओके, आप बिल्कुल आप कह लें कि यू आर राइट एट दिस स्पॉट ऑफ टाइम। वेस्ट रिमूवल, एग्जैक्टली अब्दुल हसीब साहब यू आर राइट। मूव द फ्लो, फुरकान मेकिंग थिंग्स विद इन द स्ट्रीमलाइन, एग्जैक्टली यू पीपल आर राइट एंड यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज द दिस इज द मेन, यू कैन से दैट हम लोग जो एजेंडा है शॉर्टली डिस्कस करेंगे। एंड इसमें से व्हाट इज लीन, लीन मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच, लीन की वेस्टेज, आइडेंटिफाई द वैल्यू एक्टिविटीज, कंटिन्यूअस फ्लो एंड पुल सिस्टम को हम शॉर्टली जो है ना इनकी एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो आप ये देखें कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि लीन जो है एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसका एक फ्रेमवर्क है कि उस फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। वेस्ट क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई फायदा ना हो। मिसाल के तौर पे आप ऐसे ही आप कोई चीज करने के लिए उठ जाते हैं जिसका किसी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं है। आइदर इट्स फ्रॉम योर डेली लाइफ, आइदर इट्स फ्रॉम योर प्रोडक्शन कोर एरिया, और आइदर इट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका किसी किस्म का एडवांटेज किसी आपके कस्टमर को ना हो, दैट इज कॉल्ड वेस्ट। ये एक आप कह लें कि एक हम इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जब हम लीन के सिस्टम में जाते हैं ना, तो लीन हमें इसको मजीद स्पेसिफिकली बहुत सारी चीजें इसकी हमें बताता है। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आइडेंटिफाई वैल्यू, मैप द वैल्यू स्ट्रीम, क्रिएट फ्लो, एस्टैब्लिश पुल, परसूट और फॉर परफेक्शन। सो दैट इज द लीन मैनेजमेंट अप्रोच। बस आप ये जो आपने एक साइकिल देखी है, दिस इज कॉल्ड लीन मैनेजमेंट अप्रोच। सिंपली कि आपने सबसे पहले अपनी आइडेंटिफाई वैल्यू करनी है,
उसके बाद आपने वैल्यू स्ट्रीम मैप करना है, व्हाट इज दिस, ये हम आगे बताएंगे। फ्लो क्रिएट करना है, इस्टेब्लिश द पुल सिस्टम करना है, और आपने इसके अंदर बेहतरी लेके आनी है। जो लीन का एक आप कह लें कि ब्यूटी है और एक खूबसूरती है, वो ये है कि ये इट इज अ नॉन स्टॉपेबल जर्नी, कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू है। अच्छा, मजे की बात है, आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिड, नॉन वैल्यू एडिड, ये दोनों चीजें यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है। कोई भी आपको ऐसा प्रोसेस, कोई भी आपको ऐसा सिस्टम, कोई भी आपको ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी जिसमें नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज ना हो। इट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इट इज मैंडेटरी, क्योंकि आपको वैल्यू एडिशन करने के लिए कुछ नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप ने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए आप मशीन की डेली सुबह आके क्लीनिंग करते हैं। दैट्स मशीन क्लीनिंग प्रोसेस इज अ वैल्यू एडिड ओनली फॉर यू। आपके कस्टमर, आपकी अदर जो स्टेक होल्डर हैं, उससे इस एक्टिविटी से किसी को फायदा नहीं है, बट इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस कि आपने इसको मशीन क्लीनिंग हर सूरत करनी है। इससे फायदा किसी को नहीं हो रहा, लेकिन आगे जो आपकी वेस्टेजेस हैं, आगे जो आपकी आउटपुट्स हैं, वो सब इससे कम हो रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आप मशीन चलाते हैं जिससे आप कुछ प्रोडक्शन, कुछ आउटपुट लेते हैं, दैट इज वैल्यू एडिड। बट मशीन क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू डेली मशीन क्लीनिंग फॉर 10 मिनट 15 मिनट। तो यहाँ पे आपको ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, लेकिन आपने इसको मिनिमाइज करना है, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। I just need some comments in chat box that you have understand my point or you have मतलब आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जिस तरफ आपको जिस डायरेक्शन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। Just please write in the chat box that what you are understanding over here, please. Yes. जी जी, ओके, यस गेटिंग इट, आमिर थैंक यू वेरी मच। ओके, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को मिनिमाइज करना है। अगर मशीन क्लीनिंग डेली आपके फ्लोर के ऊपर होती है एंड इट टेक्स टाइम 20 मिनट्स 15 मिनट 30 मिनट और ये 2 से 3 दफा होती है, तो आपने इस एक्टिविटी को मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करना है कि आपने क्लीनिंग का टाइम कम करना है, क्लीनिंग की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। दैट्स वेरी क्लियर एंड वेरी यू नो कि ये आपका की पॉइंट है कि आपने किसी भी क्वांटम ऑफ टाइम में अपना जो है ना वो क्वालिटी ऑफ वर्क पे कंप्रोमाइज नहीं करना। इसके अलावा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसी के हम सिनेरियो को कंटिन्यू करते हैं कि ऑपरेटर आया, उसने मशीन पे से मशीन क्लीनिंग करने के लिए उसने कपड़ा ढूंढना शुरू कर दिया, बुरुश ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मशीन पर से चीजें साइड पे रखना शुरू करी। दैट आर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आल्सो, ये भी एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, बट ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि वो आके कपड़ा ढूंढे, वो आके बुरुश ढूंढे, वो आके मशीन पर से चीजें सेटिंग रखें। सो दैट ये वो चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए, इसको हम खत्म कर सकते हैं। सो लीन मैनेजमेंट हमें क्या कहता है, लीन सिस्टम हमें क्या कहता है कि आपने तमाम फोकस वैल्यू एडिड एक्टिविटीज पे करना है। वो एक्टिविटीज जो कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज हैं, लेकिन आपके सिस्टम के लिए, आपकी प्रोडक्शन के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके सिस्टम्स के लिए अगर वो जरूरी है तो आपने उनको मिनिमाइज करना है। अगर खत्म हो जाए तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन यूजुअली हम इनको खत्म नहीं कर सकते, तो आपने उनको मिनिमाइज करना। और वो एक्टिविटीज जो कि किसी सूरत भी किसी भी स्टेक होल्डर के लिए फायदामंद नहीं है, लाइक प्रोडक्शन का बेतरतीब माल रखना, लाइक प्रोडक्शन का मशीनों की सफाई ना करना,
लाइक प्रोडक्शन टीम का कोई ऐसे अदर काम करना जिससे किसी को कोई फायदा ना हो, आपने उनको खत्म करना। दैट इज कॉल्ड सिंपली लीन एंड लीन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। लीन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अब इसको कैसे करता है वो हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने इसको बड़ा सिंपली एक्सप्लेन किया कि आपने आइडेंटिफाई वैल्यू करनी है, वैल्यू स्ट्रीम करनी है, और क्रिएट फ्लो करना है, एस्टेब्लिश पुल सिस्टम करना है। सो दैट इज द यू कैन से दैट इट इज द वन डायरेक्शन कि आपने इसको कैसे करना है। अच्छा, सो जैसा कि इमरान ने आपको शॉर्टली मेरे बारे में ब्रीफ किया, तो बिफोर कंटिन्यूएशन मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आई हैव डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, आई हैव मास्टर डिग्री। इसके अलावा मेरा ओवरऑल 15 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज लाइक एफएमसीजी, ऑटोमोटिव एंड टेक्सटाइल। And in these industries, I have in-depth knowledge and practical exposure of production planning and control, cost reduction, effective resource utilization, how to capacity enhancement, how to build the system, how to improve the waste, how to control the waste. और इसके अलावा मैंने लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है, एंड आई हैव done various projects about on Lean Six Sigma, on value stream mapping, on Kaizen. So here below are some my key projects detail that what we are doing in my professional career other than consultant. So आगे हम चलते हैं। अच्छा, what is Teamwood? यूजुअली आपको पता है कि हमें एक चैलेंज दरपेश होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग जो हैं वो हमें याद करने में मसला होता है। एज अ प्रोफेशनल मैं आपको कहूं कि मैं अगर किसी इंडस्ट्रियल इंजीनियर से पूछता हूं, किसी मैकेनिकल इंजीनियर से पूछता हूं, अच्छा सबसे पहले मुझे एक कमेंट्स में आप सब इमीडिएटली सारे लिखें व्हाट इज मीन बाय टीमवुड। मैंने एक वर्ड यूज किया ऊपर, व्हाट इज टीमवुड। तो किस किस को पता है टीमवुड? जस्ट राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स दैट व्हाट इज द टीमवुड, जस्ट राइट, हूएवर नोज। अगर आपको पता है आप लिखें यस, अगर आपको नहीं पता आप लिखें नो, जिसको पता है जस्ट राइट समथिंग एल्स। तो मुझे पता हो कि आप सब लोग जो हैं वो you are actively participating and you are actively hearing what is we are discussing over here. So Teamwood क्या चीज है? Teamwood actually types of it, exactly Salim you are right, Abdul Hasib okay, सभी का no issue। Actually हम सब ने मैट्रिक और इंटर में थ्योरम पढ़े होंगे, आप सबको याद होगा। मोइन खालिद न्यू वर्ड फॉर मी, ये मेरे लिए भी नया वर्ड था जब मैं स्टार्ट मैंने लिया था। सो मैं आपको ये सब चीजें बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको इस मतलब वेबिनार से मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊंगा कि आप कभी भी लीन के वेस्टेजेस भूलेंगे नहीं। जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, आप कभी उनको बोले लीन के वेस्टेजेस बता दो, हो सकता है वो भी आपको एक या दो मिस कर जाएं। थ्योरम में आप याद है हम लोग लॉजिक लगाया करते थे, और आपको एक मजे की बात बताओ, हम लोग कायदे आज़म के 14 नुकात याद करते थे, उसमें भी लॉजिक लगाते थे। सो दैट इज द लॉजिक, दैट इज द टीमवुड इज द लॉजिक दैट हाउ यू कैन लर्न व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट। सो आप इसको, आपने आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट, आपने जस्ट अपने जहन में एक वर्ड रिकॉल करना है, दैट इज टीमवुड, और आपके तमाम वेस्टेज इसमें आ जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज टीमवुड? टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। व्हाट इज मीन बाय टी? मैं आप सबको बोलूंगा, आप साथ साथ लिखते भी जाएं। इससे क्या होगा कि आप सबकी प्रैक्टिस भी होगी, आप सब जो है ना वो आपको याद भी हो जाएगा। तो अगर कोई लिख भी देता है, आप उसको आप रिपीट करें, आप अपना लिखें व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। और अगर इसकी आपके ज़हन में कोई एग्जाम्पल आती है, यू कैन राइट, तो इट इज बेटर। ये आपको कभी जो है ना, यस सलीम यू आर राइट, यू कैन आल्सो सेज इट डाउन टाइम। सो आप इसको साथ साथ लिखते भी जाएं। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट क्या है मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि कोई भी ऐसी आपका फोर्क लिफ्टर फैक्ट्री के अंदर मूव करता है, आपका ट्रक वेयर हाउस से मटेरियल लेते हुए कोई उसका जो टाइम है, कोई उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, वो वेस्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट करते हैं सिंपली। सेकेंड वर्ड इज इन्वेंट्री, आई फॉर इन्वेंट्री। आप एक्स्ट्रा इन्वेंट्री स्टोर में मंगवा लेते हैं, प्रोडक्शन की बना लेते हैं, ओवर कॉस्ट है। थर्ड वर्ड इज एम फॉर मूवमेंट। मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपकी जो होती है वो इक्विपमेंट्स की होती है, आप कह लें कि मूवेबल आइटम्स की होती है, जिसमें आप फोर्क लिफ्टर कह लें, हैंड पैलेट्स कह लें, आप कह लें कि
ट्रक्स कह लें, जो आपकी व्हीकल्स हैं, दैट इज इनकी जो मूवमेंट होती है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट होती है ऑपरेटर्स की, आपकी टीम की। एक ऑपरेटर बार बार मटेरियल लेने के लिए जाता है, एक ऑपरेटर बार बार मशीन के बैक साइड पे सेटिंग करने जाता है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट वेस्ट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मैंने जो तीनों वेस्ट बताई हैं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स दैट मैंने ट्रांसपोर्टेशन बताई, इन्वेंट्री बताई और मूवमेंट वेस्ट बताई, मोशन भी जिसको कहते हैं। तो जस्ट राइट, अगर आपको ये तीनों याद होंगे, जस्ट राइट यस यस और राइट टिम, टीम TIM, राइट इन द चैट बॉक्स वर्ड टीम, के आपको ये तीनों जो वेस्ट है इसके बारे में अंडरस्टैंड हो गया। ओके, फोर्थ वर्ड इज W। W मीन्स वेटिंग। वेटिंग का मतलब इंतजार करना, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सबको पता है। हम लोग क्लिनिक्स में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, इंतजार करना पड़ता है। तो सेम दिस वर्ड इज एप्लीकेबल टू अवर शॉप फ्लोर। वेटिंग, आपका ऑपरेटर मशीन चलाने के लिए वेट कर रहा है, आपकी लाइट चली गई है, वो मशीन का स्विच ऑन करने के लिए कर रहा है, वो मटेरियल मशीन के पीछे लैमिनेट्स रील लगाने के लिए मशीन का वेट कर रहा है। तो किसी भी वजह से वो XYZ रीजन की वजह से वो मशीन का वेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेटिंग। वेटिंग टाइम, आइडल टाइम आप कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज, फिफ्थ वर्ड इज O। O फॉर ओवर प्रोसेसिंग, ज्यादा कर देना। आपसे किसी ने आपको एक आई थिंक आप जो है वो अगर आपको किसी ने, मैं फर्नीचर की एग्जांपल आपको देता हूँ, आपसे किसी ने कहा कि यार इस पे 2 कोटिंग करनी है, आपने उस पे 3 कोटिंग कर दी, सो दैट इज ओवर प्रोसेसिंग। ये एक वेस्ट है, मटेरियल का जाया, टाइम का जाया, यूटिलिटी का जाया। इसी तरीके से ओवर प्रोडक्शन, ऑर्डर जो था वो 1000 पीसेस का था, आपने 1500 पीसेस बना दिए, 1200 पीसेस का, दैट इज कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन। एंड सेवेंथ वन इज D फॉर डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स जो है ये किसी भी प्रोडक्ट में आना, किसी भी प्रोसेस में आना, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ वेस्ट। द लास्ट वर्ड S, व्हाट इज मीन बाय S? मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया, सो आई जस्ट मेक के आप में से किसी को पता है कि 8वां जो वेस्ट है, एक्चुअली लीन में जो है वो 7 वेस्ट है, ये 8वां जो वेस्ट है ये बाद में आया। सो इफ एनीबडी नोज के व्हाट इज मीन बाय S, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, और मैं फिर आपको बताता हूँ। सो S इज सेफ्टी, जो हम लोग हर जगह पे पढ़ते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, और कई कंपनियां इसको स्माइल लेती हैं, तो स्माइल भी जस्ट एक्चुअली HR से रिलेटेड हो जाता है और सेफ्टी से भी रिलेटेड हो जाता है कि आपने जब अपने काम पे आना स्माइली फेस से आना, जाना स्माइली फेस से। सो दिस इज आई थिंक, आप जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स कि आप सबको टिम वुड्स का मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो गया होगा, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टिम वुड्स। ओके, सो 2 चीजें और हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो हमने स्लाइड में भी डिस्कस की थी, कि व्हाट इज कंटिन्यूअस फ्लो एंड व्हाट इज पुल सिस्टम। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिंपली मैं बताऊंगा। मैं सबसे ये पूछूंगा कि हमें डेली जो बहुत सारे लोगों को, जो आप कह लें कि मिल्क मैन है, वो घर पे आके दूध सप्लाई करता है और कुछ लोग शॉप से लेते हैं। सो आई जस्ट नीड योर ओपिनियन, जस्ट राइट। काजी साहब आप भी मुझे जरा बताइएगा कि जो डेली दूध आके हमें सप्लाई करता है, ये हमारा पुल सिस्टम है या कंटिन्यूस सिस्टम है? जस्ट इसको मैं आपसे जस्ट ऐसे पूछना चाह रहा हूँ। तो अगर आप या कोई भी आप मुझे राइट इसको करें। पहला है कि डेली पुल सिस्टम है, या यस सलीम यू आर राइट, यू आर 100% राइट कि मिल्क मैन जो है, जो हमें दूध आके देता है, इसको हम पुल कहते हैं, और जो हम शॉप से जाके दूध लेते हैं दैट इज पुश सिस्टम, दैट इज पुश। ओके, अब मैं एक और चीज, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, इम्तियाज है कराची में, यहाँ पे हाइपर स्टार है, लुत्फ है, बहुत सारे मार्ट हैं। तो व्हाट इज ये, इसको आप क्या बोलेंगे? ये दैट इज पुल सिस्टम और पुश सिस्टम, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ये क्या होते हैं? सो आई एम जस्ट सीइंग कि आप अपने कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो। नो वरी, दैट इज यस आमिर मुगल, यू आर राइट, पुल सिस्टम। ओके, अच्छा, मास प्रोडक्शन ऑफ कार, ट्रक एंड एरोप्लेन, जो मास प्रोडक्शन हम लोग कार की कर रहे होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे?
डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ERP, एग्जैक्टली मोबाइल लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बल्क में बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पुश सिस्टम। पिज्जा शॉप है, पिज्जा बन रहे होते हैं, पुल सिस्टम है। मैकडोनल्ड, KFC, सबवे, ये वो लोग हैं जो पुल सिस्टम पे काम करते हैं। पर हमारी जो स्ट्रीट फूड होती हैं, जो हमारे नॉर्मल गली मोहल्ले में होटल होते हैं या हाईवेज पे होते हैं, ये पुश सिस्टम है। सो जस्ट आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि पुश सिस्टम और पुल सिस्टम आपको समझ में आ जाए। पुल सिस्टम कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है, जो कस्टमर को चाहिए, जितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पुल सिस्टम। और जो मास प्रोडक्शन होती है, मिसाल के तौर पे हम लोग मास्क, कोविड आया था, मास्क बनना शुरू हो गए, वो बनते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे पुश सिस्टम। तो लीन मैनेजमेंट हमेशा आपको क्या समझाता है कि आपने ऑलवेज इंप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ पुल सिस्टम। पुल सिस्टम आपने लेके आना। पुश सिस्टम इज हाईली नॉट रिकमेंडेबल इन लीन मैनेजमेंट। ओके, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे, मैंने एक पिज्जा की और कंटिन्यूस फ्लो की लगाई है। कानबान, कानबान का दूसरा वर्ड कानबान एक्चुअली इज अ जापानीज वर्ड और इसका मतलब है सिग्नल। तो ये भी आपको एक अंडरस्टैंड हो गया होगा कि दैट इज ओके। अच्छा, इसके अलावा लीन मैनेजमेंट के अंदर जो हम लीन मैनेजमेंट या लीन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, एक्चुअली इट इज द, जब हम पहली स्लाइड पे जाके देखते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि इट इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या चीज हैं? ये एक्चुअली हैं ये 29 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इट इज लॉट ऑफ अदर्स बट आई हैव राइट सम, ओनली सम थिंग्स। काइजन क्या चीज है? मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा काइजन की। काइजन क्या चीज है? काइजन का मतलब है बेहतरी के लिए तब्दीली लाना। उर्दू में मैं कहूं कि कोई भी ऐसा काम बेहतरी के लिए तब्दीली लाना। अगर कोई यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल शेयर कर दे तो आई लव इट। यस सलीम, यू आर राइट, चेंज फॉर गुड। तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की इसकी बहुत, इसकी बड़ी बेसिक हमारा जो सोसाइटी इसमें एग्जाम्पल है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे ऑफिसेज में, बैंक्स में हम देखते हैं एक दरवाजे पे पुश और पुल लिखा होता है। ये सिंपली क्या है? ये एक बेहतरी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि एक आदमी ने दरवाजा खोलना है तो वो अंदर की तरफ पुश ना करे। मतलब आप लीन की आप सोच देखें कि लीन ये कहता है कि आपकी कोई भी एक्शन जो है ना वो जाया नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि दरवाजे के ऊपर पुश या पुल नहीं लिखा हुआ, तो आप देखें कि दिन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी रॉन्ग होती हैं, कि वो कितनी दफा लोग आके पुल करेंगे। हो सकता है वो पुश वाला दरवाजा, हो सकता है लोग उसको पुश करते हैं और उसको पुल करना होता है। दैट इज द थिंग। इसके अलावा काइजन की देयर इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। ये तो मैंने आपको सिंपल सी दी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें, वैल्यू सी मैपिंग, 5S, कानबान, ओबाया, गैम्बा। मैं इसमें आपको एक 11 नंबर एग्जाम्पल है पोका योके। एक जापानीज की लीन की प्रैक्टिस है पोका योके। इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे एरर प्रूफिंग। इसके किसी के पास अगर कोई एग्जाम्पल हो तो मैं आपको एग्जाम्पल इसकी शेयर करता हूँ। नहीं तो एक्चुअली आप देखते हैं कि यूएसबी आप कभी भी रॉन्ग नहीं लगा सकते। क्यों? कि उसका डिजाइन ही इस तरह का है कि आप उसको रॉन्ग लगाना भी चाहे वो नहीं लगेगी। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोकायोके कि आपने अपना सिस्टम इस तरह डेवलप करना है कि आपकी गलती की किसी किस्म की गुंजाइश ना हो। इसी तरह और भी आप मैं कहूं कि बहुत सारी पोकायोके की एग्जाम्पल हैं। मोबाइल के चार्जर होते हैं जो आप लगाना चाहें वो भी नहीं लगते। तो देयर इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू मेक द सिस्टम एरर प्रूफिंग। इसके अलावा लीन की 7 वेस्टेजेस हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि पुश पुल सिस्टम है, सिंगल अलाउबल मिनट है, टाइम एंड मोशन स्टडी है, PDCA साइकिल है, CLTA ये क्लीनिंग लुब्रिकेशन। तो इनकी अभी हम इसकी जो इनकी ये 29 जो आप कह लें कि मैंने मुख्तलिफ लीन की प्रैक्टिसेस लिखी हैं, इन सब के अंदर एक पूरी साइंस है, पूरी मिथ है कि आपने किस तरीके से
इनको समझना है, इनकी लॉजिक्स क्या है और ये कैसे आपने इंप्लीमेंट करने और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली जो आप कहें कि यहाँ पे आपके लिए एक मैंने कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी रखी हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग लिखा है पॉइंट नंबर 2। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसपे मैंने खुद एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उस पे मैंने जस्ट वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का टूल मैंने इंप्लीमेंट किया और कुछ नहीं किया, जस्ट वीएसएम का टूल अप्लाई किया। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एक बैच बनने का टाइम था उसमें 12 घंटे लगते थे। जब आपने इस टूल को इंप्लीमेंट किया तो यू हैव द सेविंग टाइम ऑफ 4 आवर्स, 8 घंटे में वो प्रोसेस हो गया। मैन पावर 14 नंबर ऑफ मैन पावर इस प्रोसेस में यूटिलाइज होती थी, आपने यहाँ पे 9 मैन पावर से वही प्रोडक्टिविटी, वही प्रोसेस, वही आउटपुट किया जस्ट टू इंप्लीमेंट द वीएसएम टूल। साइकिल टाइम आपका 33% रिड्यूस हुआ, मैन पावर सेविंग जो है आप की जो 36% की सेविंग आई, इलेक्ट्रिसिटी की 50 यूनिट्स। आपको पता है बिजली इस वक्त, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि आप इन टूल्स को अगर आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी सर्विसेज में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, XYZ जहां पर भी आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप यू गेट द डबल डिजिट्स बेनिफिट। एक और मैंने यहाँ पे माइलस्टोन 3 एक और मैंने एग्जांपल दिया है सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई टाइम की। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे 27 नंबर पॉइंट, ये जो पॉइंट है SMED, इसकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है यहाँ पे। अगर आप जिस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, यू हैव गॉट, पहले चेंज ओवर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, हिस्सा है, और ये हो रहा होता है, आप इसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि पहले चेंज ओवर में 30 मिनट्स लगते थे। जब आपने इस सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई टाइम के टूल को इंप्लीमेंट किया, यू हैव गॉट 9 मिनट्स। बिलीव कि आपने कितनी ज्यादा मिनट सेव किए। मैन पावर 6 मैन पावर पहले इंगेज होते थे, 5 आपने एक वर्कफोर्स सेव की। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक टूल है गैम्बा का, दैट इज आल्सो जैपनीज, जिसका मतलब है कि आपने एक जगह पे तमाम स्टेक होल्डर ने इकट्ठा होना है। प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू आ गया, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उस जगह पे जितने स्टेक होल्डर है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप देखें कि अगर इस प्रॉब्लम पे हमने एक गैम्बा का टूल इंप्लीमेंट किया तो 7 प्रोसेस टाइम जो था 7 घंटे था, वो 4 घंटे, ऑलमोस्ट 50% पे सेविंग पे आ गया। मैन पावर 3 से इसमें सेविंग नहीं आई। तो लाजमी नहीं है कि आप जब कोई टूल इंप्लीमेंट करें तो आपको हर एंड पे सेविंग नजर आए, बट यू गॉट हियर द प्रोसेस टाइम सेविंग। तो दीज आर द टूल, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप अगर अपनी इंडस्ट्री में, अपनी सर्विस इंडस्ट्री में, अपनी एविएशन इंडस्ट्री में, अपनी किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में, आप इसको हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, कहीं भी आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं, यू गॉट द सिग्निफिकेंट सेविंग इन डबल डिजिट्स। अच्छा, अब अगर लेट से ये एक और प्रोजेक्ट लीन सिक्स सिग्मा का, मैंने खुद इसमें JNP कोर्स में ये प्रोजेक्ट किया था और इसमें एक्यूरेसी हम लोग 99% लेके आए थे। ओके, ये एक मैंने जस्ट आपको ट्रेंड शो किया कि एक कंपनी ने इसमें से कुछ टूल को इनिशिएटिव लिया तो हाउ दे गॉट द प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, वो प्रोडक्शन कैसे उन्होंने इंक्रीज की। सो मूविंग टुवर्ड द लास्ट स्लाइड, ये आपने चीजें देखी कि लीन मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज्यादा हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे सेटअप्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये सब चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, ये एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस जर्नी है। सो आपके लिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, यू हैव स्पेंट अ टाइम, आपने एक टाइम दिया, आप यहाँ पे यू आर वन ऑफ देम कि आप सीखने के लिए आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टिल हैव नॉट द पैशन टू लर्न। तो यू आर वन ऑफ देम कि आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है आपने इस फ्रेमवर्क को देखते हुए आपने देखा यू माइट बी इंटरेस्टेड कि हम इससे क्या एडवांटेज ले सकते हैं।
सो हियर गॉट द एडवांटेजेस कि अगर आप इन तमाम जो मैंने आपसे कोर्सेज शेयर किए, मैं बाद में इमरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको हम लोग जो है वाया ईमेल ये तमाम चीजें आपसे शेयर करें, ये तमाम कोर्सेज शेयर करें और तमाम चीजें आपसे उनके एडवांटेजेस आउटलाइन वगैरह शेयर करें। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक कोर्स आप समझते हैं कि मेरे लिए, मेरी इंडस्ट्री के लिए इस वक्त ओबाया का टूल बेस्ट है, मैं या ओबाया का टूल सीखना चाहता हूँ, या मैं काइजन की टाइप सीखना चाहता हूँ, मैं हुशन कानरी ये टूल सीखना चाहता हूँ, यामाजुमी चार्ट, ये एक बड़ा डिफरेंट चार्ट है, बहुत मजे का चार्ट है। अगर आप इसको आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो कि ये वो चीजें जो बड़ी अट्रैक्टिव और बहुत जबरदस्त चीज है, जापानीज टूल है, इसको आप टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का टूल भी कह सकते हैं। तो आप इसमें से कोई एक टूल सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं मैंने OEE अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करनी है। सो बिफोर इंप्लीमेंटिंग यू वुड नो व्हाट इज OEE, OE है क्या। तो इसके लिए एक हमने ये तमाम हमने शॉर्ट कोर्सेज मैंने डिजाइन किए हुए, और यू जस्ट लर्न ऑल दीज कोर्सेज इन $7 इन इफ यू, अगर आप इसको आज के दिन में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यू गेट द 30% डिस्काउंट, और अगर आप इसके अलावा जाते हैं तो ये है 10% डिस्काउंट्स के ऊपर, $10 के ऊपर। तो ये बड़े मजे की, मैंने आपको एग्जाम्पल, इसमें एक्सरसाइजेज हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक टिल अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं तो यू विल हैव द वेरी गुड एडवांटेजेस। इवन कि अगर आप 7 वेस्टेजेस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शाम को आप चेक करें कि आपने कितनी ज्यादा मतलब मोबाइल, आप तो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर आ गए तो आपको पता चल जाएगा अपने पूरे दिन में कितनी देर मोबाइल यूज किया, तो यू नो कि कितनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस। तो ये सब चीजें जो है आप लीन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो हियर इज माय एड्रेस कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें, मेरे साथ अप्रोच रखना, किसी भी हवाले से कांटेक्ट करना चाहे तो leanconsultantsforyou@gmail.com ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नीचे मेरा लिंक्डइन का लिंक्डइन पेज है और लीन कंसल्टेंट का भी पेज है। तो ये वो चीजें जो मैंने आपसे शेयर किया, आई होप आप सबने इसको बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा आपने, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, कुछ डिफरेंट। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल और प्रैक्टिकल मेरे पास चीजें हैं, बट इतना शॉर्ट टाइम था, हम इसको जाहिर सी बात है नहीं कर सकते। तो मैं इंशाल्लाह हम लोग कभी दोबारा कोई सेशन रखेंगे तो कोई एक टूल को हम लोग लेंगे, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एडवांटेजेस जो हैं, उससे क्या क्या आप आउटकम्स ले सकते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू इमरान साहब। आप कोई कुछ ना कोई पूछना चाहे, कोई चीज है, मेरे ख्याल से आई थिंक हमने आपने माशाल्लाह काफी डिटेल से काफी सारी चीजें, डिटेल से नहीं हम कहेंगे लेकिन ओवरव्यू दिया। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें थी, प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में इसको कवर करने की कोशिश की क्योंकि हमने 1 घंटे का टाइम रखा था और 15 मिनट जो है वो हमने लिए, और इतना ग्रेस मार्क्स से हमें हमारा राइट भी बनता है थोड़ा सा लेने का। सो आई थिंक दैट्स फाइन, और थैंक यू एवरीवन। आप सबने बहुत अच्छा माशाल्लाह आप सबने पार्टिसिपेट किया, दैट्स ग्रेट, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you so much. Thank you so much, Khurram. I really appreciate all the participants as well. So I believe Ma'am Ghazala had a question. So Ma'am, please feel free. जी She has raised hand. So Moin Khalid has said thank you to Imran Qazi and Mohammad Khurram. Both of you explained very well. So he liked the will learn change model and the team would. So that's great. That's great. These are your key takeaways. So that's all awesome. So Ma'am Ghazala, you have a question, I believe, because since you have raised your hands. And you can unmute yourself if you like, because you can ask questions and we would like to hear your voice. So Sabika, Ibrahim, और सेकेंडली मैं ये कहूंगा, आई थिंक इमरान साहब हमने सेशन तो क्लोज कर दिया। एक 5 मिनट की एक हम चिट चैट कर सकते हैं, कोई भी कोई चीज पूछना चाहे, कोई अपने कमेंट्स देना चाहे तो वेलकम। आप लोग मिस गजाला हैं, सबीका हैं, राना साहब हैं, तो दे कैन जस्ट आस्क, या कोई फीडबैक देना चाहे सेशन के हवाले से, इस वेबिनार के हवाले से, यू आर मोर देन वेलकम। आप
प्लीज फील फ्री होके, क्योंकि अब हमने ऑफिशियली तो हमारा जो चीजें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर लें, दैट्स क्लोजिंग फ्रॉम अवर एंड। सो आप कोई चीज शेयर करना चाहें, आप बताना चाहें कि आपको कैसा कुछ चीजें सीखने को मिली हैं, तो दैट्स वेरी गुड एंड वेरी गुड फॉर अस एज वेल। So I think everything is good. It means that no one is asking question and no one is so that's good. जी, I would like to pose the question once again. जी, floor is open for you now. अगर आपके कोई queries हैं, कोई questions हो, जैसे खुरम साहब ने बड़ा अच्छा सारी चीजों को मैं समझता हूँ कि लास्ट में सम अप किया। So ये जुबैर कुतुब साहब कुछ। हेलो इमरान। Yes मैम। जी सॉरी, मुझसे थोड़ा सा वो कुछ ऑपरेट नहीं हो रहा था, नहीं, स्टक हो गया था मेरा, नहीं, no worries, no worries. सिस्टम। अच्छा खुरम साहब, इट वाज प्लेजर लिसनिंग टू यू एंड मुझे अपना सिक्स सिग्मा का कोर्स याद आ गया व्हेन आई डिड वे बैक, आई थिंक 15 years बैक व्हेन आई वाज GMOD इन PIA। सो बहुत अच्छा लगा देख के कि बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स की बातें होती हैं और मैनेजमेंट की बातें होती हैं, तो इसमें ऐसी टेक्निकल चीजें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड वी ओवरलुक देम इन आवर डेली लाइफ। So that was a great learning, but can you kindly, although you have mentioned aviation industry and service industry, but this I understand that it is the lean management concept, it's greatly apply on the production or manufacturing industry. So can you give any specific example for my own understanding how it can be applicable in any aviation industry or in the normal corporate world, this lean management concept? मैम इसमें मैं आपको बड़ी परफेक्ट और बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दूं, और मैं कहूँ कि ये प्रैक्टिकली लीन से ही इसको लिया गया था, और इसकी जो बेसिक्स थी वो थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और जो कि आप कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम बहुत सारे CP क्रिटिकल पाथ मेथड और इस तरह के कुछ टूल्स हम पढ़ रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो क्रू होता है, जो एविएशन में जो स्टाफ होता है, उसकी एक कैलकुलेशन निकाली गई है, मतलब उस कैलकुलेशन को ड्राइव किया गया। व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? कि जब आप देखते हैं कि बोर्डिंग ओपन की जाती है 2 hours और फिर उसको आगे जो है पैसेंजर्स की इन किया जाता है और फिर प्लेन ऑन टाइम किया जाता है, तो ये एक, अगर आप मैं इसको अपने इस केस स्टडी को अपने पास देखूंगा, सर्च करूंगा, एंड इफ आई विल शेयर विद यू कि ये चीज जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग में रिसोर्स की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई की गई थी कि हमें, क्योंकि एकदम से लोग रश कियोस क्रिएट होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग सब लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो दैट्स उन्होंने इसको ये एक प्रॉब्लम थी कि इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाए। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपसे अगर कहूं कि ये भी एक एग्जांपल है कि कितने आपके पास स्टाफ होना चाहिए, वो एरोप्लेन में कितना स्टाफ होना चाहिए, वो किस तरीके से सर्व करना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए, किस प्रोसेस के लिए कितनी रिसोर्स एलोकेट करनी है। मैं रैंडमली बेस के ऊपर मैं कहता हूँ, मेरा एक ऑफिस है 5 फ्लोर का, मेरे पास 5 ऑफिसेज हैं, मेरे पास हफ्ते में 3-4 क्लाइंट आते हैं, कभी मेरे पास 10 आ जाते हैं। तो मैंने अपनी जो आप कह लें कि सर्विसेज टीम है जिसमें जेनिटोरियल स्टाफ आ जाता है, या आप कह लें कस्टमर सर्विस आती है, वो मैंने कितनी रखनी है। तो दैट इज आल्सो टेल बाय आवर लीन सिस्टम। और अगर आपको ये मैं एग्जांपल बताऊं तो आप देखेंगे कि PIA के तैयारे में कितनी एयर होस्टेस होती हैं, फिर उनके जो है क्रियो होता है, और फिर उनकी एक्टिविटीज किस तरह डिवाइड होती हैं, और आप देखते हैं कि वो सब चीजों को किस तरीके से ऑन टाइम मैनेज कर रहे होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द की एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और जो टेक्निकल साइड से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज द पार्ट्स जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, आप क्या लें कि एविएशन इंडस्ट्री में यूज हो रहे होते हैं, सर्विसेज में यूज हो रहे होते हैं, उनकी लाइफ कितनी होनी चाहिए, उनका स्टॉक कितना होना चाहिए, उनकी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, उनको किस उसके ऊपर रिप्लेसमेंट होना चाहिए, कितना उनको चेक करना चाहिए। तो दैट्स मैं अगर कहूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत है, बट लीन मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स सिग्मा अब बहुत आगे निकल चुका है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, मैं पिछले दिनों एक डिस्कशन कर रहा था, एक यूरोप के अंदर एक कंट्री जो है
टूरिज्म के ऊपर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाला एक, उसने टूरिज्म लीन सिक्स सिग्मा को टूरिज्म के ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ था। सो हम लोग तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में ही इसको कुछ हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आई थिंक आपको जो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं तो यू गॉट माय पॉइंट कि ये चीजें प्रैक्टिकली एविएशन इंडस्ट्री में पॉसिबल है और इम्प्लीमेंटेड हैं, और भी जो गैप एनालिसिस है वो करके हम बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी थैंक यू खुरम, आप यू आर वेरी राइट, आपने यू हिट द नेल, बिकॉज हमने सारे सिस्टम एंड प्रोसेसेस रिव्यू किए थे, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग की थी, एंड व्हाट यू वर सेइंग कि ये जो एकदम रश करते हैं लोग, उसके लिए सीट सिस्टम था कि जो पहले जी, जिनको पीछे बैठना है पहले वो जाएंगे, फिर मिडिल में बैठने वाले जाएंगे, एंड देन in the economy class and then the first class, and plus because I've been GM Food Services also in PIA, so I had experienced all these things and I've improved lot of I've brought lot of improvement in processes and systems because of my exposure in HR. Although people under my HR के लोग क्या करेंगे operational area में जाके, but I think they can do miracles. So thank you so much. It was wonderful talking to you, knowing you and learning from you. It was a great learning for myself from both of you, Imran and you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. It's nice talking to you, man. Thank you very much, sir. Same here, man. I really appreciate it. Ji, Anybody if I have a question, please ask. So I think Imran sab close kare. I think everyone is no question. Okay, no worries. If someone would like to drop into the chat box, अगर कोई challenge है while asking the question, sometimes system का भी challenge आ जाता है, तो अगर आप chat box को drop down करना चाहें तो you are most welcome. लेकिन I really appreciate खुरम साहब आपने special time दिया, आपका खासतौर पे the reason being you are in Lahore and बड़े short notice पे हमने आपको रिक्वेस्ट की और आपने आज एंटरटेन किया हमारी ऑडियंस को, स्पेशली आई वुड से जो हमारी SPF के साथी थे, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड में आपने देखा बहुत अच्छा क्राउड हमारा आया, और ऑडियंस जो है विद कंप्राइजेस ऑफ सेक्शन हेड्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, अबराना मुजाहिद साहब हमारे प्रोजेक्ट्स को हेड करते हैं, आमिर मुगल ऑडिट की टीम का पार्ट हैं, फिर अकील साहब थे, तो बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ पार्टिसिपेट, मोइन खालिद ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन थे, तनोवी ने सप्लाई चेन से, तो रियली अप्रिशिएट तनोली साहब ने टी के लिए फैंटास्टिक था, आई होप कि उन्होंने भी दोपहर की टी पी होगी, एंड दैट्स वेरी आल्सो वेरी गुड, सो थैंक यू तनोली साहब, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच खुरम साहब, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. This recording of this webinar would be available on my website imranazam.com as well as on YouTube में भी हमारा जो चैनल है उसमें अवेलेबल होगी, और जो हमारे इन हाउस पार्टिसिपेंट्स हैं खुरम साहब की इजाजत से वो प्रेजेंटेशन भी हम आपके साथ स्पीच शेयर करा देंगे, और खुरम साहब का पास आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, तो प्लीज फील फ्री. और खुरम साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि व्हेनेवर ही कम्स टू कराची ही विल बी आवर गेस्ट, और हमारे पास एक फिजिकल स्पीच सेशन आप आके करें. तो उम्मीद करते हैं मैप का प्रोग्राम हमारा है 24 को, जो कि मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उसने निहाल भी हमारे साथ है, तो उनको भी वेलकम करते हैं. तो 24 नवंबर को वो प्रोग्राम है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और हम सबके लिए जबरदस्त एक लर्निंग का जर्नी रहेगा. तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड बी अमान. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. Thank you. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.